Okay, so good morning, all of you. I hope everyone is doing fine and well. So, guys, we were left with in cell chapter, we were left with nucleus portion. ठीक है, वी हैड डन टिल माइक्रोट्यूब्यूल हमने कर लिया था, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स हमने ये वाले देख लिए थे पोर्शन. तो वी वर लेफ्ट विथ न्यूक्लियस. तो मैं पहले आज न्यूक्लियस के बारे में बताऊंगी. उसके बाद गाइज विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. सो let's talk about nucleus first. Then we'll be dealing with interphase. I hope everyone is there, guys. Please give me a thumbs up if you can hear me out, if you can listen to me. Audio and video both are clear. Give me a thumbs up. All the schools, please let me know. I'm not able to even see how many schools are there and all. Okay, fine. I am audible and visible to all. Okay, fine. Jalimar Bagh BT block. चलो गाइस, तो बात करते हैं पहले न्यूक्लियस पे. न्यूक्लियस क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियस? तो गाइज वी हैड ऑलरेडी सीन, जब हम अपन न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल. ये कहा जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है. क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता है. नाउ गाइज दिस न्यूक्लियस वॉज फाउंडेड, आपका जैसे एनसीईआरटी जो किताब है आपके एनसीईआरटी, तो उसमें they have mentioned कि nucleus was founded in a structure known as thin fibers, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं. और ये क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर है that was founded by a scientist, जिन्होंने ये बोला कि ये एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे क्रोमैटिन. अब क्रोमैटिन इसलिए इसको बोला गया था क्योंकि दैट chromatin was a structure that gave chroma, color, है ना. तो it appeared colorful inside the microscope, so it was known as chromatin. It was a thread like structure. अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ गाइज, तो न्यूक्लियस is divided into, there are, we can say there are two phases of nucleus. One, when the cell is under non-division, when the cell is not dividing, and second is when the cell is dividing. So this chromatin structure, when the cell is not dividing, we call this as interphasic nucleus. So in this interphasic nucleus, you see the chromatin, the thread like structure entangled like this. This structure is of the interphasic nucleus, the nucleus that is in rest phase or the interphase. So just see, this is the outer membrane, outer nuclear membrane. This is the inner nuclear membrane. This is the perinuclear membrane. Thick. And this, guys, this space, this matrix of the nucleus is known as nucleoplasm. ठीक है. The space, this one is known as, guys, nuclear pore. Now inside this chromatin structure, you see like this present. These are nothing but, we call this as nucleolus. What do you call it as? Nucleolus. The structure is known as nucleolus. ठीक है. Now what happens? This is the nucleus, and the outer membrane or outer envelope of the nucleus will give rise to something structure like this, that is known as ER.
ER gives the rises to Golgi, as I have already told you in the previous class. So this nucleus, outer nuclear envelope, gives rise to ER. Now the next thing, guys, what you need to see is this nucleolus, है ना? This nucleolus, it synthesizes RNA. So RNA are synthesized inside the nucleus, and proteins are synthesized outside the nucleus. Means we said that protein synthesis is done by RER, and ER is the extension of the nuclear envelope. So you can say that protein will be synthesized in the ER, protein synthesis, and that also in RER. What it makes? It makes proteins. Fine. Now the next thing is, guys, this makes protein. Now the next thing you see is, so the proteins, and this is what, this is the cytoplasm area, है ना? This is the cytoplasm area. So we say that proteins from the cytoplasm are transported inside the nucleus from nuclear pore complex, and the RNA from inside the nucleus is transported outside to the साइटोप्लाज्म. ठीक है, इसलिए न्यूक्लियर पोर को हम कहते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कराता है. क्या कराता है गाइज? ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट. ठीक है, कैसे? तो बाहर से प्रोटीन अंदर जाता है और अंदर से आरएनए जो होता है वो बाहर आता है, क्योंकि अंदर में आरएनए बन रहा है. अब गाइस कहा जाता है जितना ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, उतना ज़्यादा आरएनए बनता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आरएनए बनेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, हम कहते हैं कि दिस इज जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, इंटरफेज, यानी कि ये न्यूक्लियस G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये मैं पढ़ाऊंगी, उसमें ऐसे ही रहता है. जब सेल को डिवीजन करना है तो होगा क्या, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा. ठीक है, और ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बाहर निकल के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको अपन कह रहे हैं दिस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम. स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम कब बनता है? जब ये क्रोमैटिन जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंडेंस होके इंटैंगल जो है वो खुल के और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं. ये कब बनता है? जब सेल डिवाइडिंग फेज में होता है. कब बनता है? जब सेल डिवाइडिंग फेज में होता है. अब इस क्रोमोसोम में गाइस देखो, इट इज जस्ट लाइक, आप क्या देख रहे हो कि बाहर बाहर ये ऐसे फैला हुआ है और अंदर की तरफ ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ऐसे दबा हुआ है एक जगह. तो दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर. और इस सेंट्रोमियर को गाइस इस तरह से कवर करता है कौन? काइनेटोकोर. कौन कवर कर रहा है गाइस? काइनेटोकोर. अब आप देखिए, ठीक है, तो काइनेटोकोर को हम कहते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द सेंट्रोमियर. क्लियर? नाउ यू सी, ये जो दोनों बाजू है इसका, ठीक है, बोथ द आर्म्स, दे आर नोन एज क्रोमैटिड, और इन जनरल हम इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड है. क्या कह रहे हैं हम इसको? सिस्टर क्रोमैटिड. नाउ गाइस, इन दोनों में से आप देखोगे कि सेंट्रोमियर से कौन कितने डिस्टेंस पे है, उसके बेसिस पे क्रोमोसोम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक क्रोमोसोम इस तरह से है जिसमें इसका दोनों आर्म्स P और Q, ऐसा समझो, अगर P और Q दोनों आर्म जो है सेंट्रोमियर से इक्वल डिस्टेंस पे है, एक इक्वी डिस्टेंस. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे गाइस मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. अब इसमें गाइस P होता है स्मॉल आर्म
एपिटाइट, ठीक है। क्यू होता है लॉन्ग आर्म। अगर मैं ऐसा बनाऊं स्ट्रक्चर जिसमें पी को जो क्यू है वो बड़ा होगा और पी क्यू के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा होगा, तो रेशियो कितना हो गया 2:1। ऐसा को हम कहते हैं गाइस सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, अगर Q ज्यादा बड़ा है और P बहुत थोड़ा मतलब 3:1 के रेशियो में है, तो इसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर गाइस अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा आपको देखने को मिला इसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। क्लियर हुआ? बताओ फटाफट, गिव मी अ थम्स अप। बेस्ड ऑन कि सेंट्रोमियर से किस डिस्टेंस पे है क्रोमोसोम्स को 4 में बांटा गया है। गुड, चलिए अब इसके बाद गाइस थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ठीक है, हमने जैसे बोला कि ये हमारा रहा क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो होगा इस तरह से पैकेजिंग होगी। डीएनए की पैकेजिंग कहाँ होगी? क्रोमोसोम के अंदर होगी। तो अगर मैं इसको क्रोमैटिड कह रही हूं, ये हो गया हमारा डीएनए। अब समझना गाइस होता क्या है जब सेल डिवीजन होती है। अभी ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। अब हम चलेंगे कि सेल डिवीजन में क्या होता है। तो जब सेल डिवीजन देखते हो तो सेल डिवीजन में 2 फेज होता है, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, इंटरफेज होता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, नॉन डिवाइडिंग होता है, और एम फेज होता है जब सेल की डिवीजन हो रही। तो नॉन डिवाइडिंग में G1, S और G2 आता है, और इंटरफेज डिवीजन में एम फेज आता है या माइटोटिक फेज आता है। ठीक है, तो जब सेल की डिवीजन होती है गाइस, सेल डिवीजन में सबसे पहले हम देखते हैं कि G1 फेज होता है, S फेज होता है, G2 फेज होता है। ये S फेज में डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट कर जाता है। क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए के रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए डबल हो जाता है एस फेज में। तो जैसे ही एस फेज होगा, ये कैसा हो जाएगा? ये क्रोमोसोम जो हम आपको ऐसा दिखाए हैं, जब एस फेज होगा गाइस, तो इसका जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा। अब डबल होगा का मतलब हुआ ऐसा हो जाएगा। मतलब आपने क्या देखा कि क्रोमैटिड जो है वो डबल हो गया, ठीक है, और ये जो डीएनए है ये रेप्लिकेट हो गया, वो भी डबल हुआ। तो डीएनए डबल होना मतलब जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो डबल हो गया। लेकिन व्हाट दिस सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है गाइस, ठीक है, वो सेम रह गया। तो अगर मैं बात करूं कि सेंट्रोमियर क्या बताता है, ये कब है? जब नॉन डिवाइडिंग फेज है, एस फेज है। अब इसके बाद आएगा गाइस क्या? इसके बाद आएगा डिवाइडिंग फेज। तो डिवाइडिंग फेज में आप देखोगे कि ये जो सेंट्रोमियर है ये 1 से 2 हो जाता है। ठीक है, इसको मैं बताऊंगी। तो जब भी आपको बात करनी होगी हमें कि सेल के डिवीजन के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि सेल डिवीजन में न्यूक्लियस जो होता है, सेल का डिवीजन कब होता है गाइस? सेल का डिवीजन 2 प्रोसेस में होता है। पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, फिर सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है।
तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इक्वल्स टू सेंट्रोमियर एंड डीएनए इक्वल्स टू क्रोमैटिड। तो आपको क्रोमैटिड बता दोगे मतलब आप डीएनए बता रहे हो, और आप सेंट्रोमियर बता रहे हो मतलब आप न्यूक्लियस बता रहे हो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें कितना न्यूक्लियस है तो आप क्या बोलोगे? n। इसकी प्लॉइडी क्या है? आप बोलोगे n, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस है, एक ही सेंट्रोमियर है। तो जितना नंबर ऑफ सेंट्रोमियर होगा उतना नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा, जितना नंबर ऑफ क्रोमैटिड होगा उतना कंटेंट ऑफ डीएनए होगा। क्लियर हुआ? बताओ, टेल मी, गिव मी अ थम्स अप इफ यू नो, इफ यू कुड अंडरस्टैंड गाइज। बताओ बताओ, फटाफट बताओ। नहीं समझ में आया है तो प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। अभी तक मेरे पास एक भी चैट नहीं है। पार्टिसिपेंट्स वी हैव 9 अप्रॉक्स पार्टिसिपेंट्स, लेकिन चैट मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। पार्टिसिपेंट्स 9 है। कौन कौन है? शालीमार बाग, देन यू हैव स्मार्ट बोर्ड 11, शालीमार बाग, कारोल बाग, प्लीज स्पीक अप। नो, प्लीज स्पीक अप, यू अंडरस्टूड? किशनगंज, गौतमपुरी 11th नीट, बताओ, टेल मी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? SOSE सेक्टर 23 11A, बताओ। गिव मी अ थम्स अप गाइज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। नो, ओके चलो समझ गए मतलब। नेक्स्ट अब देखो गाइज, हमको इसमें न्यूक्लियस में पढ़ना होता है कि पैकेजिंग कैसे होता है न्यूक्लियस में डीएनए का। तो अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो हम ये बता दें आपको कि जो न्यूक्लियस होती है उसका साइज होता है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to the power -6 मीटर, विच इज वेरी स्मॉल। एंड जो डीएनए होता है वो अप्रॉक्स 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। आप ऐसा समझो कि इस छोटे से डब्बे में आपको 2 मीटर का रस्सी को क्या करना है गाइज? लपेट के पैकेजिंग करनी है। तो ये दिस इज द न्यूक्लियस, दिस डब्बा इज द न्यूक्लियस, और इसी के अंदर 2 मीटर का इतना बड़ा सा वायर आपको फिट करना है। तो कैसे पैकेजिंग होगी? ठीक, तो पैकेजिंग में व्हाट यू सी इन पैकेजिंग, व्हाट यू सी इन पैकेजिंग सी इन पैकेजिंग व्हाट यू सी कि पहली बात तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो इसमें कैसे पैकेजिंग हो? एंड यूकैरियोट्स में गाइज न्यूक्लियस होता है, तो इसमें कैसे पैकेजिंग होगी? ठीक है, दीज आर द 2 थिंग्स विच यू नीड टू नो। नाउ यू सी गाइस, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, इंस्टेड इसके पास कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। नाउ मैं पहले दिन पे जब बैक्टीरिया बताई थी तो मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था कहाँ प्रेजेंट होता है, इसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो गाइस ये साइटोप्लाज्म में क्या है? किसी एक जगह पे, कहाँ पे? जहाँ पे मीजोसोम का एक्सटेंशन होगा वहां पे स्कैटर्ड रहेगा। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस कि जैसे हमें पता है कि ये जो जैसे मैंने ये बताया न्यूक्लियोइड जो स्ट्रक्चर है यही डीएनए समझो, इसी को जेनेटिक मटेरियल समझो, और डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है। डीएनए का निगेटिव चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड फॉस्फेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ड्यू टू द चार्ज ऑन द फॉस्फेट डीएनए एज अ होल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ गाइज, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि डीएनए नेगेटिव ना हो जाए सेल में, कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे जगह जगह पे, ताकि इसको ऐसे रैप करके रखे, ठीक है, न्यूट्रलाइज करके रखे, ये बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो जाए। अब ये जो प्रोटीन्स होंगे गाइज, इनका नेचर बेसिक होगा, ठीक है, दीज विल बी द बेसिक प्रोटीन। कौन कौन से? लाइजीन और आर्जिनिन, आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। ये क्या करेंगे? इसको आराम से, भाई तू बैक्टीरियल सेल में ऐसे के ऐसे ही रहे और रेप्लिकेशन इसी तरह, क्योंकि ये देखो ये सर्कुलर कहलाता है, ठीक है, तो रेप्लिकेशन होता है। अब ये 12th में पढ़ोगे किस तरह से रेप्लिकेशन होता है। अभी
आपको सिर्फ यही जानना है, ठीक है, कि ये इस तरह से होगा. सो दिस विल बी द बेसिक प्रोटीन. नाउ इन यूकैरियोट्स गाइस किस तरह से पैकेजिंग होता है. तो यूकैरियोट्स में आप जो देखते हो कि डीएनए जो है यूकैरियोट्स का वो ऐसा है, हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स है. तो भाई कैसे, किस तरह से पैकेजिंग कराएंगे. तो गाइस यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो एक प्रोटीन के ऊपर उसको लपेट दिया जाता है, ठीक है. इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन. और ये जो प्रोटीन है ये बेसिक होता है नेचर वाइज, मतलब इसमें आर्जिनिन और लाइसिन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक. अब इसी के ऊपर डीएनए जो है इस तरह से रैप्ड होता है. हो गई पैकेजिंग प्रोटीन. अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है गाइस, मैंने सिर्फ एक बनाया, तो मत समझ जाना कि ये एक है. अब ये हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूँ. सी, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके 4 यूनिट्स होते हैं. कोर हिस्टोन जो होता है इसके 4 यूनिट्स होते हैं. 4 यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, H2A, H2B, H3, H4. समझना, हिस्टोन प्रोटीन 2A, 2B, H3 एंड H4. अब गाइस हर यूनिट का एक और सब यूनिट होता है. मतलब क्या, H2A का 2 सब यूनिट, H2B का 2 सब यूनिट, H3 का 2 सब यूनिट, H4 का 2 सब यूनिट. तो टोटल कितना हो गया, H2A 2. मतलब अगर समझो गाइस, मैं इसको कैसे दिखाऊं, जैसे आप लोगों ने वो पजल वाला देखा होगा, है ना, जब वो पजल खेलते हो तो 3D स्ट्रक्चर होता है, आगे भी आपको दिखेगा पीछे भी. मतलब ये H2A 2B ऐसे 4 स्ट्रक्चर ऐसे पड़े हैं. और गाइस पीछे में भी, इसके पीछे भी ऐसे 4 स्ट्रक्चर है. तो टोटल ये 8 हो गया. और 8 को हम कहते हैं कि इसी को हम कहते हैं गाइस हिस्टोन का ऑक्टामर, ठीक है. अब इसको आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये 4 है और 4 इसके पीछे ऐसे लगे हुए हैं. 4 स्ट्रक्चर इधर दिख रहा है, 4 इधर. इसी के ऊपर डीएनए जो है गाइज वो रैप होता है. तो ये बेसिक है प्रोटीन, इसके ऊपर एसिडिक डीएनए रैप होता है. इस तरह से डीएनए एज अ होल इज न्यूट्रलाइज्ड. अब गाइज समझो, ये जो ऑक्टामर का यूनिट है इस पे डीएनए अगर रैप हो जाता है तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, अगर इस यही 8 यूनिट पे डीएनए की रैपिंग हो गई, इसी को स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गाइज न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर. और इसी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा गया था तो ये कुछ इस तरह से दिखता है. इस तरह से. इसी को हम क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं. इसी को कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. बीड्स ऑन स्ट्रिंग मतलब मोतियों पे धागा इस तरह से लपेटा हुआ है. अंडरस्टूड हुआ, बताओ. अब समझो, अगर ये ऑक्टामर है, इस पे मैंने क्या किया, डीएनए को लपेट दिया. अब समझो, एक ऑक्टामर पे, एक हिस्टोन के ऑक्टामर पे गाइस 1.75 टर्न डीएनए लपेटते हैं. 2 टर्न नहीं, पहले एक बार डीएनए लपेटेगा अपने आप को, फिर 50.5 है ना, और फिर 0.25, मतलब 1.75 टर्न बार डीएनए इसके ऊपर घूमता है. फाइन. और इस 1.75 टर्न जो घूमता है इसमें टोटल 200 बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस तरह से, ठीक है. कितने टोटल, 200 बेस पेयर्स होते हैं. समझ में आ रहा है, फटाफट बता दो, समझ में आ रहा है तो बता दो. चलो बताओ भाई, जल्दी बताओ. टेल मी गाइस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. बताओ बताओ फटाफट. थम्स अप दे दो यार, गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. चैट्स खोलना पड़ेगा. देखो चैट्स मैं खोल के बैठी हूँ, किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा, ना रिस्पॉन्स है.
SOSE Shalimar Bagh, then you have Civil Lines, Gautam Puri, Karol Bagh is there, Sector 23, 11A. भाई बताओ भाई, अभी तो मुझे सिर्फ 5-6 स्कूल्स ही दिख रहे हैं, 6 स्कूल्स ही हैं। समझ पाए गाइस? गिव मी अ थम्स अप। बाकी टीचर्स की क्लास में डू यू रिस्पॉन्ड, या कोई पूछता ही नहीं है, बस पढ़ाते जाता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, ओके। फ्रॉम सिविल लाइंस वी हैव गॉट रिस्पॉन्स। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे आना है, बोलना है, निकल लेना है। तो यार ऐसे मजा नहीं आता ना। आई ऑल्सो शुड नो वेदर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। चलो ठीक है, गुड, नाइस। चलिए, तो ये होगी पैकेजिंग की बात। इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग हो जाती है इनसाइड द न्यूक्लियस। अब गाइज mic is currently disabled, okay fine, chalo. Now guys, I am also not the host, so that I can unmute you all. I don't know what's wrong with them, they are not making me the host, just the co-host, and I am just asked to unmute. See, it's not responding. The very first day I was having that authority to do, I was able to do, but now I don't know what's wrong. They haven't given me that authority to make you all unmute. चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सुन लीजिए। तो ये होगी पैकेजिंग की बात। अब गाइज नाउ हमने, और हाँ, वी डू नॉट हैव एनी माइक एक्सटेंशंस राइट नाउ। ओके, कोई इशू नहीं है गाइज, इट्स ओके, जस्ट यू कैन रिस्पॉन्ड मी इन दी चैट ना, इट्स ओके। आई एम नॉट आस्किंग यू टू से, ओके फाइन। चलो, तो द नेक्स्ट थिंग इज गाइज, सी, you need to know about something called telomerase. Telomeres. So what are these? If I show you, this is the chromosome. So in this chromosome, over here and over here, okay, some sequence of nucleotides are present. You can say some sequence of bases are present. They are the telomeres. What they do, they help, they do not, what they do, their function is, they do not allow other nucleotides to base pair with them. Simply what they do, they cohesion को ये क्या करते हैं, they do not allow cohesion, क्योंकि क्या हो सकता है, कोई और किसी और क्रोमोसोम का कुछ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग, एज वी नो डीएनए हैज द कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल, इट कैन बेस पेयर, सो दे व्हाट दे डू, दे प्रिवेंट फ्रॉम द कोहेशन, टीलोमियर्स। नाउ इट इज सेड दैट गाइज, एज पीपल एज, है ना, लोग जैसे जैसे एज करते हैं तो रेप्लिकेशन के बाद ये टीलोमरेज कम होते जाता है, दीज टीलोमियर्स दे श्रंक, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो यंग दिखने के लिए गाइस, है ना, एंटी एजिंग, एग्जैक्ट वर्ड इफ आई यूज, ये एंटी एजिंग के मेडिसिन्स लेते हैं, एंटी एजिंग के मेडिसिन्स लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, डिफरेंट वाइटामिन्स लेते हैं। तो व्हाट आर देज, इस एंटी एजिंग में क्या करते हैं ना गाइस, सम इवन दे आर सर्जिकली व्हाट दे डू, कि अपने बॉडी में ऐसे एंजाइम्स को इनकलकेट कराते हैं जिससे कि ये टीलोमरेज जो है ये कम होना बंद हो जाए, मतलब ये कम, या फिर ऐसे एडिशनल टीलोमरेज उनके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टीलोमरेज कम होता है आपकी एजिंग जो है वो नजर आने लगती है। तो एंटी एजिंग के लिए बेसिकली टीलोमरेज की आप कह सकते हो कि क्वांटिटी अपने बॉडीज में इंट्रोड्यूस कराना एक्सटर्नली, या फिर कुछ मैन्युपुलेशंस कराना जिससे कि इनकी जो टीलोमेयर है उसकी शॉर्टनिंग ना हो। तो शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमेरेज इज शी, ठीक। तो गाइज दिस वाज ऑल फॉर न्यूक्लियस, ये पूरा जितनी बातें बताई ना ये न्यूक्लियस से रिलेटेड। अब नाउ अब हम शुरू करेंगे गाइस, नाउ वी विल स्टार्ट। इज इट ओके गाइस, बताओ समझ में आया क्या न्यूक्लियस का पूरा कहानी? अब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन शुरू करेंगे। न्यूक्लियस की कहानी सबको समझ में आई एवरीवन, किस तरह पैकेजिंग हो रहा है, नॉन डिवाइडिंग फेज में कैसा प्रेजेंट होता है, डिवाइडिंग फेज न्यूक्लियस कैसा दिखता है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोमियर कैसा दिखता है न्यूक्लियस, क्या क्या नाम होता है, क्लियर हुआ सबको?
जल्दी से फटाफट थम्स अप करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, सेल साइकिल सेल डिवीजन शुरू करूंगी। ओके, चलो चलिए, कमिंग टू द वेरी बेसिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ साइकिल? व्हाट इज साइकिल? In general, if we talk, what is cycle? It is just a sequence of repeated events, है ना? बार बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है, इसकी को हम साइकिल तो कहते हैं। तो साइकिल इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इवेंट्स। नाउ एनसीईआरटी डज सेज द सेम थिंग। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल को बोला जाता है कि कभी जब एक डॉटर सेल, आप देखते हो, देखो देयर इज एग्जैक्टली दे हैव सेड दिस, सेल साइकिल क्या है, एग्जैक्ट द वर्ड्स आई एम जस्ट कोटिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। सी दे सेज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है, बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, मतलब डीएनए जो है उसका डबल होता है। सिंपली जीनोम क्या है? डीएनए है, डीएनए डबल होता है। फिर सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, डबल होके और भी जितने सेल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है, वो डबल होते हैं। और उसके बाद एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, और फिर क्या कर जाता है? सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। तो 3 चीज रिपीट में हो रहा है, इसी को हम सेल साइकिल कह रहे हैं। सबसे पहले जीनोम यानी डीएनए सिंथेसिस, दूसरा डीएनए के अलावा और भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अब वो डबल हो रहे हैं, जैसे गोल्जी हो गया, है ना, गोल्जी हो गया, या और सेल ऑर्गेनील्स हुए, तो ये डबल हो रहे हैं। और तीसरा क्या? ये सब डबल होने के बाद डिवाइड कर जा रहे हैं 2 डॉटर सेल, तो हमको एक सेल से 2 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। तो हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ? तो ये आपका हो गया, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इवेंट्स, और ये 3 सीक्वेंस जो हो रहा है बार 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 बार, दैट इज ओनली नोन एज सेल साइकिल। देखिए अब क्या कह रहा है कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो सिर्फ एक ही स्टेज में होता है। दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू नो कि जो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है वो एस फेज में होता है। एस को ही कहते हैं सिंथेसिस फेज। एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, एंड एस फेज, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, एंड दैट इज द एस फेज। The replicated chromosomes are then distributed। अब मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट देती हूँ जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं सेल साइकिल की बात करूं तो सेल साइकिल गाइस 2 फेज में बांटा गया है। एक को कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज और एक को कहते हैं डिवाइडिंग। ठीक है, नॉन डिवाइडिंग फेज को गाइज हम कहते हैं जिसमें सेल की डिवीजन नहीं हो रही, इसको कहते हैं इंटरफेज। और जिसमें सेल की डिवीजन होती है गाइज उसको हम कहते हैं माइटोटिक फेज। क्या कह रहे हैं? माइटोटिक फेज। अब देखो इंटरफेज जो होता है,
अगर मैं बात करूं सेल साइकिल में 90% टाइम सेल जो है वो इंटरफेज में रहता है। नॉट 90 गाइज, 95%। इंटरफेज क्या है? नॉन डिवाइडिंग, मतलब 95% ऑफ द टाइम सेल नॉन डिवाइडिंग फेज, सिर्फ 5% टाइम आप देखोगे सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज में। अंडरस्टूड? बताओ, समझ गए सारे लोग? चलिए अब हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूं किसी ऑर्गेनिज्म, उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि इंटरफेस जो होता है गाइस सेल का 95% टाइम लेता है। तो अगर किसी इंसान में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, आप मान लो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म 20 साल जीने वाला है, मान लो 20 ईयर्स जीने, ठीक है, तो इसका 95% निकाल लेना, वो उसका सेल जो है इंटरफेज में ही रहेगा। बाकी सिर्फ 5% सेल्स जो हैं 20 ईयर्स का 5%, बस वो सेल डिवीजन होगी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का सेल साइकिल, मान लो सेल साइकिल है वो 24 घंटे में है, 24 घंटे का है, उसमें से 23 घंटा सेल जो है वो नॉन डिवाइडिंग रहेगा, सिर्फ 1 घंटे ही सेल जो है उसका डिवाइडिंग रहेंगे। ओके, नाउ इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 subphase: G1, S, and mitosis phase is again known as M phase. And this is further subdivided into 4 phases: PMAT, prophase, metaphase, anaphase, telophase. समझ पाए? जल्दी से फटाफट थम्स अप कर दो, गिव मी अ थम्स अगर समझ। थम्स अप करो, चलो। थम्स अप करो गाइस। सो गए क्या तुम लोग? गाइस फ्लाइट मोड में चले गए क्या? फ्लाइट मोड में चले गए क्या सारे? थम्स अप करो, थम्स अप। चलो गुड, बढ़िया लग रहा है अभी, आई एम फीलिंग बेटर। चलिए, तो हमने क्या देखा कि ये सब फेसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो गाइस, G1, S और G2, इन फेजेस की बात करें हम जब, तो G1 फेज में G1 को कहते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ फेज 1, ठीक है। S को कहते हैं हम सिंथेसिस फेज। क्यों सिंथेसिस फेज? क्योंकि इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, और इसी डीएनए सिंथेसिस को कहते हैं, डीएनए सिंथेसाइज होना मतलब बनना, इसी को कहते हैं हम क्या? इसी को गाइज वी से इट एज डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही। इसके बाद आता है G2 फेज, इसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज 2, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिल्स की ग्रोथ देखते, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला के अगर मैं बात करूं, दिस वी टॉक अबाउट इंटरफेस। G1, S और G2 तीनों मिलके बनाते हैं इंटरफेस। एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलो। अब देखो सिंपली समझना एक डायग्राम से कि एक सेल है,
दिस इज द सेल और ये इसका न्यूक्लियस। मैं इसको न्यूक्लियस मेंशन कर रही हूँ, इसको साइटोप्लाज्म है। दिस इज अ सेल। तो छोटा कर दे। अब जब ये सेल, पहले मैं बता रही हूँ कि जीवन फेज में होगा, तो जब जीवन फेज में होगा गाइस, तो इस सेल की ग्रोथ होगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी बेटा। साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, जब साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो इसका न्यूक्लियस भी बढ़ेगा। इस फेज को क्या बोलोगे? ये जीवन के बाद है। इसके बाद आप देखोगे गाइस एस फेज होगा। अब एस फेज में आप क्या देखोगे कि डीएनए की और सिंथेसिस होगी, ठीक है, और ग्रोथ होगा, डीएनए और डबल हो जाए, न्यूक्लियस एज इट इज रहेगा। इसके बाद आप देखोगे सेम एज इट इज, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, सेम G2 में भी। हमने क्या बोला? ये S है, ये G2। अब M फेज में क्या होगा गाइस? ये जो सेल है, ये M फेज, ये 2 सेल में बढ़ जाएगा, साइटोप्लाज्म भी टूट जाएगा और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस। दिस इज M फेज। आई होप समझ पाए आप लोग। देखिए क्या मैंने बोला कि पहले यहां से यहां तक हमने क्या देखा, यहां से हम यहां तक हमने क्या देखा? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक। उसके बाद इस सेल में डायरेक्टली तो ये नहीं होता है गाइस, डायरेक्टली देखो क्या होता है इस सेल में। अभी साइटोप्लाज्म एज इट इज रहेगा, ये जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन हो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। फिर एक टाइम के बाद ये न्यूक्लियस, एक ही सेल में आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिले, एक ही सेल में, सॉरी, एक ही सेल में आपको 2 न्यूक्लियस, और फिर लास्ट में जाके ये सेल 2 अलग अलग साइटोप्लाज्म और 2 अलग अलग न्यूक्लियस वाले सेल बन। देखो तो गाइज हमने क्या देखा कि यहां से यहां तक वाज इंटरफेज। नाउ गाइज दिस इज नोन एज, यहां से यहां तक दिस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही, कैरियोकाइनेसिस। एंड दिस फेज इज नोन एज गाइज साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। बता दो फटाफट। इस तरह से सेल डिवीजन जो है उसको बताया। क्लियर हुआ गाइस? देखियो पहले इंटरफेज, फिर ये एम फेज में कैरियोकाइनेसिस। अब क्या समझ रहे हो कि जब सेल की डिवीजन होती है तो सबसे पहले उसमें उसकी न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड्स and then the cytoplasm divides, yeah, then the cytoplasm, पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और तब दी साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। तो न्यूक्लियस डिवीजन को कहते हो कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हो साइटोकाइनेसिस। क्लियर हुआ? तो ये पूरा स्टेप है एक सेल के इंटरफेज से लेके इसके डिवाइडिंग फेज में, जिसमें कैरियोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस। चलो नेक्स्ट देखो। अब हम एक एक स्टेज की बात करेंगे, हम जीवन की बात करेंगे, फिर हम एस फेज की बात करेंगे, फिर हम G2 की बात करेंगे, फिर हम एम फेज की बात करेंगे, ठीक है, फिर हम साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हम एनसीईआरटी को बिल्कुल फॉलो करेंगे गाइज। देखो ये है डायग्राम सेल साइकिल का, जिसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम जीवन से लेकर G2 तक यानी ये साइकिल को देखें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 95% हो,
ये हमारा क्या हो गया, 95% हो गया। और एम फेज यानी कि बस इतना गाइस, ओनली दिस मच। सेल साइकिल में सिर्फ 5% एम फेज होता है, बाकी यहां से लेकर यहां तक जो हमने बताया ये क्या होता है, इंटरफेज। अब गाइज इसमें एक और फेज होता है जिसको हम कहते हैं G0 फेज या G0 फेज। इसको हम क्या कहते हैं, G0 या फिर G0 फेज। इस G0 फेज में आप क्या देखते हो कि ये जो G0 फेज है या G0 फेज है, दिस इज नोन एज, दिस फेज इज नोन एज टेम्परेरी अरेस्ट। मतलब अगर कोई सेल है उसको सेल डिवीजन नहीं करना है, ऐसा समझना। एक बार अगर सेल G1 से S फेज में आ गया, एक बार अगर G1 से S में ट्रांजिशन हो गया, मतलब उसकी डीएनए रेप्लिकेट कर गई गाइस, तो उसको फिर सेल डिवीजन करना ही पड़ेगा। अब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे न्यूरॉन के सेल्स, जैसे हार्ट के सेल्स, इनको सेल डिवीजन नहीं करने का मन, दे डोंट वांट टू गेट डिवाइड। तो व्हाट दे डू कि G1 से ये उल्टा टर्न ले लेते हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द S फेज, व्हाट दे डू गाइस कि ये G1 से G0 फेज में चले जाते हैं या G0 फेज में, ठीक है। एंड दे एग्जिट फ्रॉम दी सेल। आप देख सकते हो, देखो ये इस तरह से G0 में जाके सेल बाहर निकल, तो G0 फेज इज द टेम्पररी अरेस्ट फेज। फाइन। अब इसी को हम एक और नाम से कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्विजेंट फेज। क्या कह रहे हैं हम इसको, क्विजेंट फेज। क्लियर, बताएं, ठीक है। नाउ चलते हैं गाइज हम G1 फेज पे, ठीक है। Now if we move to the G1 phase, just a minute guys. ठीक है, चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे गाइस, G1 फेज। देखो यहाँ पे G1 इज गैप 1, S फेज इज सिंथेसिस फेज, G2 इज गैप 2 फेज, ठीक है। और G1 से S में सेल जो नहीं जाना चाहता है वो G0 फेज में चला जाता है और टेम्परेरी अरेस्ट हो जाता है, अंटिल की सेल को बहुत ज्यादा डिमांड होता है कि भाई अब तू आ जा। और हाँ, G0 के सेल्स वापस कब आते हैं गाइस, जब व्हेन द सेल वांट्स कि उसको कुछ रिपेयर मैकेनिज्म चाहिए, तब वो G0 के सेल्स को बुलाता है, वरना G0 सेल्स के कोई काम है नहीं। तो G0 सेल इज नोन एज द क्विजेंट फेज सेल। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। G1 फेज जो होता है, इसको हम कहते हैं क्या कि दिस इज द फेज जिसमें कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। गाइस आप लोग समझ पा रहे हो, प्लीज थम्स अप दे दो। अगर नहीं समझ में समझ पा रहे हो तो, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज थम्स डाउन दो, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैं एक फ्लो में चल रही हूँ बहुत, मुझे लगता है आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि तुम सब समझ पा रहे हो कि नहीं। गाइज इफ यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज गिव मी अ थम्स अप। बताओ गाइज, टेल मी, फास्ट तो नहीं हो जा रहा ना, बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, अंडरस्टूड है जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं। ओनली हाउ मेनी आर देयर यार, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर, मेनी स्कूल्स आर देयर, वेरी फ्यू। शालीमार बाग है, ये SOSC सिविल लाइंस है, हैव गौतमपुरी कारोल बाग। अच्छा खासा तो 5-6 स्कूल्स तो हैं ही, एक भी थम्स अप दे दो, थम फटाफट। कारोल बाग समझ में आ रहा है, 11B, नहीं कारोल बाग 11B, शालीमार बाग BT ब्लॉक, SOSC सिविल लाइंस।
अभी तक 10A ही चल रहा है, 11A करवा लो, है ना। यू हैव कम टू क्लास 11, दे आर शोइंग 10A। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन फेज करेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब प्लीज समझना, व्हाट डू दे से, कह रहा है कि जीवन फेज जो है वो इंटरवल है। इंटरवल इज व्हाट कमिंग इन बिटवीन, है ना, इसके बाद इंटरवल, फिर इसके बाद कुछ। तो इंटरवल कैसे, अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं लिखूं G1 S G2 M, तो G1 को क्या बोला गया है गाइस, सी, G1 को कह रहे हैं कि G1 S G2 M, फिर से G1 S G2 M। तो दे आर सेइंग कि जो G1 है, G1 ये M और S फेज के बीच में आ रहा है, मतलब दिस इज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन द M फेज एंड द S फेज। मतलब M फेज इज द डिवीजन फेज, S फेज इज द रेप्लिकेशन फेज। तो डिवीजन और सिंथेसिस के बीच के फेज को हम ग्रोथ फेज या जीवन फेज कह रहे हैं। यही चीज यहाँ पे कह रहा है गाइस। और इस फेज में आपको जो सेल्स दिखेंगे वो कैसे हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होंगे। कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ होगा इसमें, ठीक है, दे विल बी कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ, बट यहाँ डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। डीएनए की सिंथेसिस नेक्स्ट फेज में होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, एस फेज कहेंगे या फिर सिंथेसिस फेज कहेंगे। तो ड्यूरिंग G1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. S or synthesis phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. तो S phase कौन सा है guys? This marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. अब जैसे मैंने आपको बताया कि DNA replication तब होगा जब क्रोमैटिड डबल होगा। तो अगर कोई ऐसे, आई हैव ऑलरेडी शोन यू नो, इफ दिस इज द डीएनए, यू वी आर सेइंग कि ये जो क्रोमोसोम है ये G1 में है, तो एस फेज में ये क्रोमोसोम गाइस ऐसा बन जाए। समझना, जो इसका सेंट्रो, क्या हमने बोला, इसका सिस्टर क्रोमैटिड, सेंट्रोमेरियम, सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो डबल हुए, लेकिन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या डबल हुआ, नहीं हुआ, सेंट्रोमियर सेम है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आप G1 में बताओ कि नंबर ऑफ, कि न्यूक्लियस कितना है और डीएनए यानी क्रोमैटिड कितना है, तो G1 में आप देखोगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, यानी कि सेंट्रियोल भी 1 है, N है, 1N, और क्रोमैटिड भी 1C है। लेकिन S फेज में ये क्रोमैटिड डबल हो जाता है तो 2C चला जाता है, ठीक है। अब गाइज एक बात मैं बता दूं, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल डिवीजन और वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोसिस। तो जो माइटोसिस होता है उसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में होता है। माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में होता है। कुछ ही ऐसे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हनी बीज आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस के अलावा जितने भी डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल में होता है। 2 सेट का मतलब क्या, एक क्रोमोसोम के अंदर आपको ऐसा कम से कम 2 सेंट्रोमियर मिले, 2 न्यूक्लियस। तो डिप्लॉयड सेट में होता है, इसलिए हम 2N और 2C से शुरू करते हैं, लेकिन ये 2C बाद में S फेज में 4C हो जाता है, लेकिन N जो न्यूक्लियस है वो सेम रहता है। फिर आप देखोगे गाइस कि G2 में भी सेम ही कहानी चलेगा, 2N और 4C होगा। और M फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि M फेज में जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड तो करेगा, लेकिन चूंकि इक्वेशनल डिवीजन है तो 2N का 2N ही रह जाएगा, लेकिन ये 4C आधा होके गाइस वापस 2C बन जाए। मुझे बताइए आप समझ पाए कि नहीं, टेल मी दिस थिंग, अंडरस्टैंडिंग, गिव मी अ थम्स अप गाइस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग।
बताओ बताओ फटाफट बताओ। चलो, तो एस फेज में क्या होगा गाइस, क्रोमैटिड डबल हो जाएगा। देखो मैं इसको फिर से बनाती हूँ, ठीक है, प्लीज समझना। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो मच एम्फसाइजिंग, बट स्टिल आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड। अगर ये जीवन हुआ, ठीक है, जीवन में कैसा होता है सेल, तरह से होता है, ठीक है। दिस इज, क्योंकि डिप्लॉयड सेल में हो रहा है तो जीवन में इस तरह से क्रोमोसोम। एस फेज में यही क्रोमोसोम सेम टू सेम गाइस हमको देखने को एस फेज में यही क्रोमोसोम को इस तरह से, ये एस फेज। जीवन में हम लिखेंगे, जीवन में आप क्या लिखोगे जीवन फेज में, कि n इक्वल्स टू 2n, c इक्वल्स टू 2c। मतलब दो n क्या है भाई, n कैसे जोड़ते हो, n इक्वल्स टू सेंट्रोमियर और c इक्वल्स टू क्रोमैटिड। तो दो क्रोमैटिड है, दो सेंट्रोमियर है। s में क्या हो जाएगा, n तो दो ही है ना, n तो दो ही है, लेकिन c जो है गाइज वो 1 2 3 4 4 हो चुका है, 4c। दिस सेम थिंग विल बी कैरिड गाइज इन G2। G2 में आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। क्यों सेम देखने को मिलेगा, n 2n ही होगा, c जो होगा वो 4c ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनील्स का डुप्लीकेशन होता है। लेकिन यही जब हम m फेज में बात करें गाइस, तो m फेज में क्या होगा, m फेज में थोड़ा सा चेंज होगा। अब मुझे बताओ यहां तक तो समझ गए, इसके बाद मैं और आगे समझाने की कोशिश करती हूँ। m फेज में आप क्या देखोगे इसको, दिस इज G1 S एंड G2। अब देखो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरफेज। अब मैं आती हूँ एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, और G2 में कुछ कुछ ऑर्गेनील्स और प्रोटीन्स, जैसे कि हमने बोला कुछ कुछ प्रोटीन्स जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, टिब्यूलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे प्रोटीन बनता है जिसका नाम है टिब्यूलिन प्रोटीन, और ये प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाता है। एस फेज में गाइज आपको सेंट्रियोल जो होता है वो भी डुप्लीकेट कर जाता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, और डीएनए भी डुप्लीकेट कर, ठीक है। इसमें गोल्जी अपैरेटस की भी डुप्लीकेशन होती है, ईआर भी देखते हो, इसकी भी डुप्लीकेशन होती है। अब हम आते हैं गाइज एम फेज। एम फेज को हम कहते हैं माइटोसिस फेज, या फिर इसी को कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में आप क्या देख रहे हो कि ये जो सेल है, सबसे पहले माइटोसिस में आता है प्रोफेज। तो प्रोफेज में आप क्या देखोगे कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये टूट जाता है, ठीक है, और जो क्रोमैटिन था स्ट्रक्चर, अब वो क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। मैंने क्रोमोसोम में इसलिए समझाया ताकि तुम लोग समझ पाओ, ठीक है, बट दिस इज ऑल हैपनिंग इन क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, इंटरफेजिक स्टेट। नाउ जब वी कम टू प्रोफेज, प्रोफेज में आपको क्या दिखेगा, इस तरह से क्रोमोसोम बन के इधर उधर रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है, इधर उधर रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। तो मैं प्रोफेज दिखाती हूँ पहले, प्रोफेज में क्या लिख रहा है, प्रोफेज में क्या क्या मेजर इवेंट्स है गाइस। कह रहा है कि क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम फॉर्म हो जाता है। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर इन द सेंट्रोमियर। मैंने बता दिया एक सेंट्रोमियर पे 2 क्रोमैटिड्स के साथ अटैच दिखते हैं आपको क्रोमोसोम। दूसरा क्या होता है प्रोफेज में कि इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, यानी जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। देखो अगर ये क्रोमोसोम है हमारे, ठीक है, तो इस क्रोमोसोम को यहाँ सेंट्रियोल होता है, इसको ऐसे गाइस पकड़ के रखता है, जो इसको हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। तो ये माइटोटिक स्पिंडल का आप क्या देखोगे, ये असेंबल होता है किसमें, प्रोफेज में। क्यों, ताकि एम फेज में क्रोमोसोम को बस
जब इक्वेटर पे अलाइन करना होगा तो दोनों तरह से क्रोमोसोम को पकड़ के ये खींचेगा। तो यही चीज आप देख रहे हो कि द माइक्रोट्यूब्यूल द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन द प्रोसेस। इसके बाद देख रहे हो कि सेल्स इन द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू किया जाएगा तो आप क्या देखोगे, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्यों भाई? क्योंकि ये सब टूट चुका है, तभी तो सेंट्र क्रोमैटिड निकल के क्रोमोसोम बना है, जब सारा स्ट्रक्चर टूट गया है। और एट द एंड ऑफ, ये सब कुछ नहीं दिखेगा एट द एंड ऑफ प्रोफेज। ओके, ये सब टूट चुका है क्योंकि अब क्रोमोसोम बन चुका है, क्रोमैटिन अब क्रोमोसोम। नेक्स्ट गाइज आते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में आप क्या देखोगे, इस तरह का अरेंजमेंट, डायग्राम का है, डायग्राम, ठीक है। देखो प्रोफेज, ये क्रोमैटिन ऐसे स्ट्रक्चर था थ्रेड जैसा, देखो ये क्रोमोसोम जैसा बन गया है, ठीक। अब ये प्रोफेज था गाइज। मेटाफेज में क्या देख रहे हो, देखो यही स्पिंडल फाइबर कहलाता है, इससे अटैच्ड है, काइनेटोकोर से अटैच करके इसको एक मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन करके रख रहा है। तो मेटाफेज में ये होता है। इसके बाद आता है गाइज एनाफेज। एनाफेज में देखो क्या होता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट। मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रोमियर हैं गाइज वो स्प्लिट हो रहे हैं यहाँ से, देखिए ये बीच वाले को कहते हैं ना सेंट्रोमियर, ये टूट जाएगा, आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा। तो यही एनाफेज में होता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं और आधी आधी मॉलिक्यूल्स चली जाती हैं रिस्पेक्टिव पोल्स पे। रिस्पेक्टिव पोल्स मतलब आधा ऊपर के साइड आधा नीचे के साइड, ये एनाफेज में होता है। और टीलोफेज में वापस से ये, ठीक है, ये वापस से क्या बन जाता है, क्रोमैटिन बन जाता है, डीकंडेंस हो जाता है और वापस से ये क्रोमैटिन बन जाता है टीलो। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो ये न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया, इसके बाद ये सेल भी अब 2 में डिवाइड हो जाए, ठीक है। दिस इज साइटोकाइनेसिस। तो दैट वाज ऑल आई हैड टॉट यू अब तक। अब जो मैंने ये डायग्राम आपको बना के दिखाया था ना, ये वाली डायग्राम देखिए कहाँ गया ये पूरा सारांश है जो मैंने आपको दिखाया, पूरी कंक्लूसिव है। इसी पहले G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, फिर M फेज में इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद जाके साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। क्लियर है ना? चलो, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होनी चाहिए इसके बाद। इसके बाद क्या होता है गाइस, आप देखोगे कि एक बार टीलोफेज में वापस से जैसी चीजें शुरू हुई थी, जहां से टीलोफेज इसको हम कहते हैं, ये प्रोफेज का ऑपोजिट है। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट। क्रोमोसोम का आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाता है, अब वो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर वापस से बन जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स, वापस से न्यूक्लियस, ER, गोल्जी, ये सब वापस आ जाता है। क्यों भाई? वापस से वो इंटरफेज में चला गया, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि ये जो M फेज होता है, M फेज को कैसे लिखते हो, पहले इंटरफेज आएगा, फिर M फेज आएगा, फिर इंटरफेज आएगा, फिर M फेज आएगा। तो M फेज 2 इंटरफेज के बीच वाला फेज है, समझ गए? तो इंटरफेज के बीच वाला, 2 इंटरफेज के बीच वाला जो फेज है उसको M फेज कह रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ये सब वापस से रीफॉर्म हो जाते हैं, उसके ऊपर वापस से बन जाते हैं। अब माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, माइटोसिस होना क्यों जरूरी है, ठीक है। माइटोसिस का होना इसलिए जरूरी है गाइस क्योंकि ये डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनाता है, और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले प्रेजेंट थे उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाद में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन करता है, ठीक है, ताकि हमारा क्रोमोसोम लॉस्ट ना हो, जितना था पहले प्रेजेंट उतना ही बाद में प्रेजेंट हो, इसके लिए माइटोसिस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं गाइस, जैसे कि इंसेक्ट्स में हनी बीज हो गए, जिनमें माइटोसिस होता है, जिनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। बट आप क्या देखते हो कि ये जो है इनका 2n ना होके n होता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हर जगह दिए हुए हैं, जैसे कि माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद द सेम जेनेटिक कंपोनेंट। अगर पहले 2n था गाइज, तो सेल डिवीजन के बाद भी, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद भी 2n ही मेंटेन रहेगा इसकी प्लॉइडी। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस।
अब माइटोसिस कहाँ कहाँ पे काम करता है, जैसे आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ है, कट जाती है, कुछ दिन बाद वापस से उसकी पूंछ रीजनरेट हो जाती है। तो कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स के जहां पे कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रहा है वहां पे माइटोसिस देख रहे हो आप। माइटोसिस जितने भी सेल क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं उसमें से 22 पेयर्स में माइटोसिस होता है। सिर्फ जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम होते हैं गाइज, उनमें मियोसिस होता है। यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम को छोड़ के जितने क्रोमोसोम्स हैं सब में माइटोसिस होता है। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, प्लांट में एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक, क्या कर रहा है, लैटरल इसकी चौड़ाई बढ़ाता है, एपिकल लंबाई बढ़ाता है। तो ये सब जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, ग्रोथ बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो माइटोसिस ही कराता है। समझ पाए बताइए हाँ या ना? फटाफट वो कर दो गाइज, हम सब कर दो फटाफट, जल्दी से हम सब। चलो गाइज थम्स अप करो फटाफट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमें देखना है कि सेल डिवीजन प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है। क्योंकि प्लांट्स के पास सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे सेल डिवीजन होगा। एनिमल्स के पास तो सेंट्रियोल है, चलो तो वो सेंट्रोसोम से सेल डिवीजन कर सकता है। चलिए गाइस we have अब माइट सेल डिवीजन के बाद हम साइटोकाइनेसिस देखते हैं, जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट मेथड, सॉरी जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो माइटोसिस के बाद गाइस, मतलब कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद हमारा साइटोप्लाज्म भी अब डिवाइड होने वाला। लेकिन प्लांट्स के पास तो सेंट्रियोल होता नहीं है, तो प्लांट्स में कैसे डिवीजन होता है। एनिमल के पास चलो सेंट्रियोल होता है, तो एनिमल्स में तो इजीली डिवीजन हो सकता है। जैसे मैं बात करूं गाइस, यहाँ पे देखो आप, जो एनिमल सेल होते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे ये वाला, ये एनिमल सेल का डिवीजन हमने बताया आपको। यहाँ पे जो ये बनाया था ना कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, तो ये एनिमल सेल का डिवीजन है, बाहर से अंदर की तरफ, है ना, बाहर से अंदर की तरफ न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से इन्वेजिनेट कर जाता है और बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन हो जाता है। सेम चीज अगर मैं बात करूं तो आप देखते हो कि साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होगा, वो अगर सेल्स इस तरह से, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इस न्यूक्लियस में बाहर से अंदर, ये बाहर से अंदर ऐसे करके डिवाइड होगा और ये इस तरह से डिवीजन। ये एनिमल सेल में बहुत इजी होता है, इसको हम कहते हैं सेल फरो मेथड। और एनिमल्स में जो डिवीजन होता है वो आउटसाइड टू इनसाइड होता है, बाहर से अंदर की तरफ न्यूक्लियस जो है वो इन्वेजिनेट कर जाता है। अब देखिए यही चीज लिखी हुई है गाइस कि इन एनिमल्स the cell, this is achieved by appearance of a furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two, और दो में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट के केस में चूंकि सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये किसी और मेथड से डिवाइड करता है। और ऐसे भी प्लांट के पास सेल वॉल होता है, समझ रहे हो, दैट इज वेरी रिजिड, एनिमल के पास नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन ही ऐसा काम करता है। तो देखिए प्लांट सेल आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। The cell wall formation starts in the center of the cell and grows outwards to meet the existing lateral walls. The formation of new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represents the middle lamella. अगर एक plant cell आपने देखा होगा, plant cell का डायग्राम, ये हो गया हमारा plant cell। इस plant cell में आपको यहाँ पे middle lamella देखने को मिलता है।
ठीक है, इस प्लांट सेल में आपको मिडिल लैमेला देखने को मिलता है। यही मिडिल लैमेला क्या करता है गाइज, कि यही अंदर से, है ना, इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ, प्लांट सेल को अंदर से बाहर की तरफ ऐसे पुश करेगा। इसी को कहेंगे सेल प्लेट मेथड। और प्लांट्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे अंदर से बाहर की तरफ। अब समझना गाइज, इसमें मिडिल लैमेला काम करता है जो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में रहते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और वो छोड़ो, साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो प्लांट सेल में आपको अंदर से बाहर होता है, इसको सेल प्लेट मेथड कहते हैं, या फिर इसको फ्रैगमोप्लास्ट फॉर्मेशन भी कहते हैं, इस तरह के मेथड। और इसको क्या कहते हैं, सेल फरो मेथड। फाइन। तो गाइज आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगले क्लास में मैं मियोसिस शुरू करूंगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस पहले पढ़ाऊंगी, फिर मियोसिस शुरू। फाइन। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई ऑल्सो हैव टू हैव माई लंच, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।